تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو بابد شاہی کوئی نہیں، بابد شاہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا جی آپ لاہور ہیں، کہتے میں لاہور نہیں آتا، آپ جیل میں، میں کہا میں جیل نہیں آتا، بالکل اسی طرح۔ لیکن ان کی گریٹنس یہ ہے کہ جب انہوں نے ذکر کیا ہمارا اتنی محبت کے ساتھ، اتنی میں نے پھر سہیل بھائی سے بھی کہا، میں کہ یار بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ اکیڈمی کی اپنی ہے یا رینٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجید محمد علی مرزا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی، جنید سلیم بھائی آ چکے ہیں۔ سر سب ٹھیک ہے سر، یہ فرحان بھائی یہ اکیڈمی کے جو کیمرہ مین ہیں، اچھا سارا کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ ویلکم سر، ویلکم، بسم اللہ۔ اکیڈمی کی آج کچھ اپڈیٹ سی تو سوچا آج اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ اپڈیٹ شیئر کی جائے۔ آج الحمدللہ اکیڈمی میں جو ڈیٹ بنتی ہے 24/2/2023 میں اویس ربانی صاحب کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں ہمارے بہت ہی سینئر اینکر حسب حال والے جنید سلیم بھائی کا انٹرویو جو وہ لینے جا رہے ہیں، علی بھائی کا انٹرویو، وہ بھی ہم آپ کو دونوں کی جھلکیاں دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اکیڈمی کے تمام سینئر ممبران سے ملاقات کی۔ آج انجید محمد علی مرزا صاحب کی طبیعت تھوڑی ناسازگار تھی، پھر بھی انہوں نے چونکہ کمٹ کیا تھا تو اس لیے پھر انہوں نے وہ کمٹ کو نبھانا بہتر سمجھا۔ پھر طبیعت خراب تھی تو اسی حالت میں پھر وہ آج اکیڈمی الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اکیڈمی میں موجود سینئر ممبران سے بڑی مزیدار گپ شپ ہوئی، انجینئر صاحب کی کاوشوں کو سراہا اور انجینئر صاحب کی پوری ٹیم کا انہوں نے دل سے شکریہ ادا کیا اور ان سب کی کاوشوں کو سراہا۔ جنید بھائی کے ساتھ آئے ہوئے ان کے کیمرہ مین تمیز نہیں ہے کہ علی صاحب جو ان کی ریکارڈنگ کریں گے وہ اکیڈمی کی تمام چیزوں کی ویڈیو بناتے ہوئے۔ حسب حال میں کافی سالوں سے ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ہوں گے، 9-10 سال ہو گئے، 13 سال حسب حال کو گئے تو 10 سال سے جو میں بولتا ہوں یہ مجھے پٹی پڑھاتے ہیں۔ اچھا آپ کے نزدیک علی بھائی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک خوبی بتانی ہے سر۔ ساری خوبیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں میرے قرصے کے بعد، ہر خوبی بڑی خوبی لگنے لگ جاتی ہے۔ علی بھائی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ دین کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، تھکتے نہیں ہیں بندہ کہیں نا، بے شک 8-10 گھنٹے میں نے نہیں تھکتا تو جا پہلوان بھی نہیں وہ میں پوچھ رہا ہوں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو خوبی ان کی بطور دائی ہی ہے نا، اور ایک انسانی خوبیوں میں سے انسانی وہ کافی ہیں، ان میں سے سب سے جو مین ہے نا کہ لالچ نہیں ہے پیسے وغیرہ کا۔ اچھا فیم کا میں نے دیکھا ان میں کوئی نہیں ہے اس طرح، اور دوسرا بالکل سادگی، ہاں سادہ زندگی، جو سب سے مین امپورٹنٹ ہے نا وہ سادہ زندگی ہے۔ پتا تھا نا تو سٹارٹ میں نا جب ان کے اس طرح کے کلپ آنے شروع ہوئے نا، جب انہوں نے بہت گرفت کرنی شروع کی تو ریکارڈنگ کرتے کرتے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہے، یہ جینوئن فیلنگز ہیں، ہوتا ہے نا، مطلب بندہ کہتا ہے یار وہ اتنے بڑے بزرگ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے بڑا بیچ میں رہ کے آبزرو کیا ہے، اس طرح سے دلیر بندہ کوئی نہیں۔ صحیح بات، یہ ہے جی سب سے بڑی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، سب سے بڑی بات سر، اس طرح کون للکار سکتا ہے، کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اور اسی معاشرے میں رہ کے وعلیکم السلام ماشاء اللہ تعالی سر۔ میں نے تو آپ کو بخار ہے، آپ کے ساتھ چونکہ میری کمٹمنٹ تھی اس لیے آپ کو بتا دیتے نہیں تھا نہیں ہماری کون سی کوئی ٹیکسٹائل مل چل رہی ہے
वो तो सर चक्कर तो नहीं, रात को अपना प्रोग्राम भी नहीं। रात को आज वाला जो लाइव सेशन था लाइव सेशन कैसे इसने कहा कि जी वो मैंने कहा कि जी वो ये अगर रेशो बताएं कि जो इख्तलाफी अमूर है वो ज़्यादा है और दावती अमूर कम है अली साहब के, तो ये बोलना कहता है कि जी उनका एहसान ये है कि वो यूथ पे एहसान ये है कि और कुछ नहीं है, आप छोड़ दें बाकी बातें। जो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एथियज्म का। जी कहते हैं कि जो अली साहब के साथ है, कहते हैं कि बेशक वो कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, वो सारा दिन अली साहब को सुनते हैं। मैंने अली भाई को फोन किया था, मुझे ये तेजी से जब बोलते ना तो ये मैंने पहला सवाल आपसे ये किया था कि ये आप क्या कहते हैं इंटरनेशनल अपरिंग। मुझे मैंने समझता था ये कोई अरबी या फारसी का लफ्ज है, तो आपको पूछा था कि ये क्या है, अली भाई फिर कहने लगे पूछे अभी तो की पूछे पहले तो लोगों में ये नंबरिंग के स्टैंडर्ड होने का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, इवन कुरान की आयत के नंबर भी बाद में लगे हैं और अहदीस की नंबरिंग तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने नहीं लगाई है, ये तो कुछ अर्सा पहले लगी हुई 30-40 साल पहले, वरना वो कुरान के शुरू नंबरिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अपना आप सेटअप लगाए फिर फोन शुरू करें ताकि आप टाइमली आपको फायदा मिलेगा। ये तो आपने तो काबे की छत पे चढ़ा दिया क्यों? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जुनैद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। नहीं करूँगा, अगरचे मैंने जब फारिग हुआ था अपनी उस एकेडमी से, मैंने हलफ लिया था 1.5 लाइन का। उस 1.5 लाइन में भी बात ये थी कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं अगर अपने अहद के साथ वफा नहीं कर, ड्रामा तो है अहद वफा, लेकिन अपने अहद के साथ वफा नहीं कर रहा, तो मैं फिर क्यों कर किसी की इज्जत करूं? कुरान और सुन्नत के साथ जो गद्दारी करे उसकी कैसे इज्जत हो सकती है? इस तरह आयन के साथ अगर कोई गद्दारी करे तो उसकी इज्जत नहीं हो सकती। ये हमारा शुरू से मौक़िफ़ है और ये वो मौक़िफ़ है जो अब माशाल्लाह हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी अडॉप्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यकीन है कि अडॉप्ट कर लिया? जी मुझे यकीन है, एटलीस्ट इस वक्त जो आर्मी चीफ है ना, आज का दस्तूर आर्मी चीफ, तो उस वक्त तो जो हम उलमा कराम से सुनते रहे वो तो सिपा सलार भी जो होता था वही हुक्मरान होते थे, हुक्मरान जो होते थे वो सिपा सलार भी होते थे और सारा कुछ रलिया में उलमा जो है ना जी, इस वक्त उलमा की अक्सरियत की दुनिया की तालीम तो बिल्कुल कोई नहीं है, यूनिवर्सिटीज का उन्होंने मुंह नहीं देखा। यानी बाकायदा तौर पे जो पहली जमात बनी है ना इस्लाम की हिस्ट्री में, तबलीगी जमात है। सियासत से आप एग्री करते हैं? देखें, उनके जो तस्वुर सियासत है उसके लिए इतनी बात काफी है कि उनमें टॉलरेंस थी। इससे पहले कभी जमातें इस तरह नहीं बनाई जाती थी, खानकाहें होती थी, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सिस्टम होता था, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज जमात के फिर 170 मुल्कों में उसका काम फैल जाए, तो ये कॉन्सेप्ट किसी आलिम दीन ने नहीं दिया, बल्कि उस वक्त चूंकि एक पूरी दुनिया में होगा था कम्युनिज्म का और उनके भी बाकायदा सर्कल्स होते थे, इन्होंने अपने गश्त शुरू कर दिए, बुध वाले सब कुछ वहीं से कॉपी किया, फिर इसको 4 चांद लगाए मौलाना मौदूदी ने जमात इस्लामी बना के उसे मजीद ऑर्गेनाइज किया। आप अगर डेमोक्रेसी पे मुझसे बात करें मैं 1 घंटा, और जो दूसरे लोग हैं जो मुल्कियत को, किंगशिप को फॉलो करते हैं, उनके दलाइल क्या हैं, फिर हम उसे काउंटर कैसे करते हैं, वो एक चीज मैं बयान कर सकता हूँ। अली भाई, एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस वक्त आपसे, लोगों के जहन में भी आता है कि आपके ये जो मौजूदा स्टांस है जो आप फरमा रहे हैं कि वो पहले का स्टांस है, उसकी एक शक्ल अब आप देख रहे हैं, तो मुस्तकबिल में हम आपको भी मैदान सियासत में देख सकते हैं? नहीं जी, ये तो बिल्कुल एक समझ लें मामला क्रास है। जिस तरह मेरा ये ऐलान है कि मैं कोई चंदा बुक नहीं बनाऊंगा, कोई मस्जिद नहीं बनाऊंगा, कोई मदरसा नहीं बनाऊंगा, ये सारी मसाजिद हमारी मसाजिद है, हम तमाम मकाम फिक्र के लोगों को मुसलमान समझते हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, इन्हें चंदे देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं अलग से कोई 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने। तो मैं पॉलिटिक्स, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, क्या फिर एक आम आदमी कैसे जज करेगा कि हक पे कौन है और पाकिस्तानी मसाइल, पाकिस्तानी अवाम ये गुर्बत की चक्की में फंसे हुए, इसका हल किसके पास है, इससे निकलने का, इस चक्की से मेरा ख्याल है अब अनडिक्लेयर्ड तो सारी सियासी जमातें इस पेज के ऊपर तो आ चुकी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल होना नहीं चाहिए,
तो खान साहब सामने आए, अगर वो ये समझते हैं ना कि ये लोग आलाकार हैं, मुस्तकबिल में भी बनेंगे या बने हुए एस्टेब्लिशमेंट के, तो एक्सपोज कर देना इनको, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखें और कहेंगे शहबाज शरीफ साहब आओ साइन करो इसके ऊपर। चुनाव का ख्याल रखते हैं और ना उनको गुफ्तगू करने का ढंग है, और वो फिर पॉलिटिक्स के अंदर वो गन मचाते हैं कि ये भी मामला जो है ना, ये ज्यादातर इनकी जमात के लोगों की तरफ से हुए हैं, जिसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। खान साहब को रिक्वेस्ट, इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारी शक्ल में दिया है कि लोगों की कोई धारस बंदी है कि मुसलमान दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, अपने दीन को लर्न कर सकते हैं, इस्लाम की नशत सानियाँ हो सकती हैं, फिर वालिद का खात्मा हो सकता है। गालिबन 2 दफा आप पर कातलाना हमले हो चुके हैं, 3 कीमत भी चुकाना पड़ी आप। देखें ये मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, और इस राह में जान भी चली जाए तो वो सैयदना हुसैन इब्न अली का कौल है अलैहिस्सलाम कि अगर जिंदगी का इख्तिताम मौत ही है तो शहादत से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। ऐसे लोग हर कौम में होने चाहिए कि जिनकी बात सब लोग सुने। ईदी साहब थे, उनको जमात तो नहीं ज्वाइन की उन्होंने, लेकिन उनकी बात को लोग पसंद है। नाम से बात नहीं की। अच्छा चले इस पर फिर बात कर लेंगे। तो और दूसरी बात ये है कि आपने दीन को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया। ये 2 चीजें आपको बहुत मुमताज और मुनफरिद बनाती हैं। यार अगर उसमें औरत की तस्वीर है तो मतलब मोहम्मद अली मिर्जा साहब इतने रिजिड तो नहीं है, बड़ी लिबरल बातें भी करते हैं, तो अगर औरत की तस्वीर आती है तो वो तो नहीं दिखा रहे ना। लेकिन इन सारी बातों का जवाब ये है कि मैं वाकई जेन्युइनली ये बिलीव करता हूँ कि मुझे अल्लाह के हुजूर पेश होना है, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। तो गाड़ी, ड्राइवर और पता नहीं क्या कुछ और उन्होंने नाल अटैच किए अपने, बंदा कहता है यार क्या है, तो वो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो चंदा बुक है वो अपने कब्जे में रखी हुई है। ये लोग हमारे बुक्स के अंदर आपस में इकट्ठे हो गए हैं, एक दूसरे की इज्जत करना शुरू हो गए हैं, जो पहले एक दूसरे को काफिर कहते थे। इतना बड़ा इत्तेहाद उम्मत किसी ने देखा है? कोई ग्लास नजर आ रहा है ना, ये वो फ्रंट वाली स्क्रीन है, ये अंदर जो पानी है ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, मैक्सिमम मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मोबाइल की शक्ल ये होती ही नहीं है, ये रंगीन नजर आ रहे हैं, ये कोई ख़वातीन के मैसेज। अच्छा हाँ चलिए ये कर लें। मैंने वो बातें ना सिर्फ सुनी बल्कि अप्रोप्रिएट आंसर्स दिए, चूंकि मैं साइंस का भी स्टूडेंट हूं। तो कुरान में यही है ना कि हर नबी जब दावत देता था ना, वो क्या कहता था, मैं दुनिया की मनफियत नहीं इससे चाहता, मेरा अजर मेरे अल्लाह के हुजूर पक्का है। तो अंबिया के मानने वाले वही होंगे जो नबियों के तरीके पे चले। अल्लाह ताला आपको बहुत इस्तेकामत दे, अल्लाह ताला आपको अजर दे। आपने जरा जो आज आपने गुफ्तगू फरमाई है इसके अजर में मुझको अजर शामिल कर लेना। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह ताला जी। ये आप जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू है जो जुनैद सलीम साहब कर रहे हैं, ये आप उनके यूट्यूब चैनल पे देखेंगे। उन्होंने अभी एक नया सिलसिला शुरू किया है, जो पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह सारी डिटेल वहाँ पे आएगी। हम आपको कुछ हाइलाइट्स दिखाएंगे जी इंशाअल्लाह। बेहतरीन इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका जुनैद सलीम साहब का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ। उसके बाद तमाम आए हुए जो दोस्त थे उन्होंने जुनैद सलीम और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ फ़ोटो शूट करवाया, आखिर में नमाज अदा की और खाना भी खाया। जेएलएम अकेडमी की तमाम तर तफसीलात और तमाम तर अपडेट्स को जानने के लिए ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो पे कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। ये चैनल जेएलएम अकेडमी का चैनल है, यहाँ पे आपको तमाम तर अपडेट्स जेएलएम की अकेडमी की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से मिल जाया करेंगी। अल्लाह हाफिज़। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।